Rest of the time we will give for the question from your side. You are also free to ask your own questions related to the different chapters, because very soon your examination is going to be started. So without wasting time, we must start the revision work. First of all, I would say that you can ask question from any of the chapters there, because I hope that you have completed some topics or some chapters of business study. If you have any queries from any of the chapters that are the portion for the half yearly examination, you can ask from me. Is there any doubts? Students who have already started their revision work, they must have some problems. You are free to ask any question. Otherwise, I have several questions for the revision. Chapter number 1, 2, 3 from part 1, from Foundations of Business. I am repeating once again, children. Chapter number 1, 2, 3. From part A, that is the Foundations of Business. Foundations of Business में से 3 chapter आ रहा है. First is the Business, Trade and Commerce. Second is the Forms of Business Organization. Third is the Private and Public Enterprises. Because global enterprises, this topic is deleted topic for this year. So I have left this topic. We will see only private and public enterprises, not the global enterprises. तो फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इन तीनों चैप्टर में अगर तुम्हें कहीं डाउट है पूछ सकते हो. अगर अभी भी तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अभी रिवीजन कराऊंगी. उसके क्रम में अगर तुम्हें कुछ लगेगा कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो तुम लोग उसको पूछ सकते हो. सेकेंड थिंग इज पार्ट सेकेंड. पार्ट सेकेंड इज कॉर्पोरेट organization, finance and trade. From this part, chapter number 8 and chapter number 9, chapter number 8 and chapter number 9, according to NCERT book, according to NCERT book, chapter number 8, sources of business finance, and chapter number 9, small business. ये 2 चैप्टर हैं. चैप्टर का सीक्वेंस में 8 और 9 है according to NCERT book. But if you all go through the syllabus given in the CBSE, this chapter is 7 and 8. These chapters are 7 and 8. ठीक है, बात समझ में आ गई कि मैं क्या बोल रही हूँ? एकदम कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सारी बच्चों के पास NCERT बुक तो बिल्कुल है. इसलिए मैं NCERT के अकॉर्डिंग चैप्टर का सीक्वेंस बता रही हूँ. 1, 2, 3, 8 and 9. 1, 2, 3, 8 and 9. ठीक है. लेकिन जब हम लोग सिलेबस देखेंगे, CBSE का सिलेबस, तो उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, है ना. 1, 2, 3 अकॉर्डिंग टू सिलेबस गिवन इन द CBSE, जो दिया हुआ है, गिवन बाय द CBSE 1, 2, 3 एंड चैप्टर नंबर 7 and 8. नेम ऑफ द चैप्टर्स आर सेम, दैट इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड स्मॉल बिजनेस. ठीक है. अच्छा, अब इसमें बहुत से बच्चों को शायद प्रॉब्लम हो रहा है और डिलीटेड टॉपिक का. यूट्यूब पर तुम लोग सर्च करो. अगर तुम एक बार टाइप करते हो ना कि सिलेबस फॉर क्लास 11th कॉमर्स BST 2020, several informations will start coming. और उसमें से कोई भी सर्च करो, डिलीटेड टॉपिक का बाय नेम उसमें आ रहा है. मैंने 2 बार शायद भेजा है, पर्सनली भी भेजा है किसी किसी बच्चे को, और मैंने ग्रुप में भी शायद 2 बार डाला है. ठीक है, तो तुम लोग उसमें देख लो, मैंने बताया भी है. फिर भी अगर कोई डाउट है तो डिलीटेड टॉपिक्स करके उसमें टाइप करो, डिलीटेड टॉपिक BST क्लास 11 2020. सारा इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगा. डिलीटेड टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा. ठीक है. इसीलिए ग्लोबल एंटरप्राइजेस नहीं पढ़ना है, चॉइस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं उसका रिवीजन नहीं करूंगी. ठीक है. क्या कोई क्वेश्चन है, या मैं स्टार्ट करूं कुछ पूछना, डिस्कशन करना? और पूछने का मतलब बच्चों ऐसा नहीं है कि बाय नेम. दोज हु वांट टू गिव देयर आंसर, दे कैन आंसर द क्वेश्चन.
ठीक है, I will not take out the name of any particular student because it is not necessary that every student is in the same chapter for their revision work. Some are practicing chapter number 3rd, some are 8, some are in chapter number 7. So I will not take out the name of any specific student. If you have revised that chapter, you are free to answer. Otherwise, you will keep silent and listen the answer carefully. Okay? This type of question can be asked to you in the examination. ठीक है, बोलो, कुछ पूछना है या मैं शुरू कर दूं? अपने आप पूछना, बोलो बच्चों। मैं पूछती हूँ फिर, ठीक है, मैं पूछती का, मैं क्वेश्चन भी बोल रही हूँ, तुम लोग आंसर करना, और फिर अगर आंसर नहीं आएगा तो मैं रिप्लाई करूंगी, ठीक है। सबसे पहले एकदम पहले आराम से बैठ जाओ, ठीक है, रिवीजन बहुत काम का होता है। पहले आराम से बैठ जाओ, सारे लोग बैठो पहले। अभी तुम लोग क्लास में बैठे हो, ठीक है, क्लास में बैठे हो और तुम्हारे सामने तुम्हारी टीचर हैं, बहुत ध्यान से सुनो। बिल्कुल ब्लैक है मेरे सामने, निश्चय कुमारी के सामने ब्लैक है, उज्जवल के सामने पूरा ब्लैक है ना। और इसमें अतुफा इफ्रा बहुत दिन बाद आई है, रोहित कुमार भी नहीं दिख रहा, शिवम भी नहीं दिख रहा, अर्पिता भी, कोई मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं फिर भी देख सकती हूँ भाई कि बहुत से बच्चे बिल्कुल आराम से बैठे इस तरह से सोफा पर, ठीक है। जहां भी बैठे हो अच्छे से बैठ जाओ और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेल हो गई, तुम्हारा सेकंड पीरियड स्टार्ट हो गया। फर्स्ट पीरियड इंग्लिश का था, सेकंड पीरियड तुम्हारा बिजनेस स्टडी का है, ठीक है। चलो पहले मैं पूछती हूँ कुछ सिंगल लाइन आंसर। सिंगल लाइन आंसर है, वन वर्ड आंसर या सिंगल लाइन आंसर है। तुम लोग पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनो, आंसर आता है रिप्लाई करना, नहीं तो मैं खुद सवाल करूंगी, फिर मैं खुद जवाब भी दे दूंगी, ठीक। चलो पहला, what type of industry is forestry? What type of industry is forestry? This question is from chapter number 1, chapter number 1st. You can open your NCERT book, you can search out the answer. Hurry up. Primary industry. Primary. Yes, good. Primary industry. हाँ बच्चों देखो, टेस्ट नहीं हो रहा है ना, इसीलिए किताब खुला रख सकते हो, बिल्कुल एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूछ रही हूँ, तुम लोग पेज टर्न करो, फटाफट खोजो आंसर दो। व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज फॉरेस्ट्री? प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। कैन यू टेल मी सम अदर टाइप ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री? Fisheries, agriculture, harvesting, माइनिंग, फिशरी, harvesting, Animal husbandry. agriculture. Yes, ma'am. Agriculture, animal husbandry, fishing, forestry, mining, these are some of the examples of the primary industry. चलो ठीक है, अब इसके बाद next. Can you define risk? Write down the question. If you have your pen or pencil with you, nursery, okay, nursery, हाँ नर्सरी भी आ सकता है इसमें एग्जाम्पल में, गुड। अच्छा बच्चों, तुम लोग सारे लोग पेन पेपर लेके बैठो। मैं जो क्वेश्चन बोल रही हूँ थोड़ा धीरे बोल रही हूँ ताकि तुम्हारे पास कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। निशी, अतुफा, सिट विथ योर पेन, पेंसिल एंड पेपर। चलो नेक्स्ट है, कैन यू डिफाइन रिस्क? व्हाट इज कॉल्ड रिस्क? Uncertainty of losses. insufficient profits or loss due to Risk is the uncertainty uncertainty associated with an exposure to loss. हाँ ठीक है, सबने आंसर सही दिया। अनसर्टेनिटी, about whom we do not know anything, whether I will be getting profit or I have to run into losses. I am not knowing, without knowing anything what is going in the future. I have started my work, so this is called risk. ये रिस्क है। किसी जो लोग काम करते हैं वो रिस्क झेलते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला है, प्रॉफिट या
लॉस उन्हें पता नहीं है, इसको रिस्क कहते हैं. अनसर्टेनिटी especially regarding profit oblique losses is called risk. ठीक है. One sentence answer means you have to define the concept or the topic only in one or maximum 2 to 3 sentences are sufficient to define any particular concept or any particular topic. चलो ये भी हो गया, मैंने टिक कर लिया कि मैंने इसको पूछ लिया. लिखते जाओ तुम लोग क्वेश्चन. अच्छा अब तुम लोग नाम बताना. नेम द ऑक्यूपेशन इन विच people work for others and get remunerated in return. Employment. How? Ma'am, can you explain? Oh, sorry, can Profession. Lawyer. हाँ, Ma'am, I'm profession. repeating the occupation. देखो, occupation नहीं. मैं फिर से Occupation, बोल रही हूँ. not ma'am. Profession. Profession. No, it's not profession. Listen my question here. Name the occupation in which people work for others and get remunerated in return. Remunerated. Remuneration means salary. Employment, wages. ma'am. Employment. Employment. Remuneration का मतलब employment होगा. क्यों? Employment. देखो employment किसका सही आंसर है. रीजन अगर तुम लोगों से पूछ लिया जाए केस स्टडीज में कि why it is called an employment, what do you answer? आंसर ये होगा कि बिजनेस में रिम्यूनरेशन नहीं मिलता है बच्चों. बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है या लॉस होगा. प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इन केस ऑफ बिजनेस. ठीक है. अच्छा जहां तक प्रोफेशन का सवाल है वहां पर फी मिलता है. लॉस नहीं होता है, वहां पर फी मिलता है. फी. ठीक है. तो बिजनेस में रिम्यूनरेशन नहीं मिलता है. रिम्यूनरेशन का मतलब होता है वेजेस और सैलरी, तनख्वाह जो मुझे मिलता है. ठीक है. जो तुम्हारे पापा अगर बैंक में काम करते होंगे, किसी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, स्कूल में टीचर होंगे, लेक्चरर होंगे, तो तुम्हारे पेरेंट्स को रिम्यूनरेशन मिल रहा है. इसका मतलब है कि वो सैलरी उठा रहे हैं, वो किसी के अंडर में काम कर रहे हैं. उनका कोई बॉस होगा, उनके कोई सर होंगे, उनके कोई हेड होंगे. ये एम्प्लॉयमेंट में होता है. तो एम्प्लॉयमेंट में हम किसी के अंडर में काम कर रहे होते हैं, इसीलिए मुझे सैलरी मिलेगा, वेजेस मिलेगा, और इस सैलरी और वेजेस को रिम्यूनरेशन कहा जाता है. ठीक है. विच इज पॉसिबल ओनली इन एम्प्लॉयमेंट. जबकि बिजनेस में रिम्यूनरेशन नहीं मिलता है, फी नहीं मिलता है. ध्यान से सुनो. बिजनेस में तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगा. बिजनेस में तुम्हें क्या मिलेगा? प्रॉफिट या नुकसान. तो इन businessmen can get either profit or losses. In employment, people can get only salary or wages, which is also called remuneration. Whereas in case of profession, lawyers, doctors, counselors, they used to get only their fee, their charge, their fee, but they are not getting their salary. Salary उनको मिलता है जो किसी न किसी बॉस के अंडर में काम करते हैं. ठीक है. तो I am getting remuneration from my DAV institution. क्लियर सबको? देखो क्लियर हो गया. प्राची क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अंजलि, शिवमोहित क्लियर हो गया बेटा? हाँ. Yes, ma'am. सुनो चलो अब ये मैंने हाँ ठीक है, मैंने इसको टिक कर लिया कि मैंने ये पूछ लिया. अच्छा अब बताओ तुम. What is a reward which businessmen get for bearing the risk? Profit. Profit is Very smart. profit is the Very reward. smart. Very good. चलो ठीक है, अच्छी बात है. ओके वेरी गुड. मेरा क्वेश्चन क्या था? बिजनेसमैन को रिस्क झेलने के बदले क्या मिलता है? सिंपल सी बात है, प्रॉफिट मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट चलो. गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी which is economic in one sense and non-economic in another sense. Ma'am, Agriculture. agriculture. Ag-
बच्चे बच्चे इसका आंसर ऐसे एकदम नहीं होगा। पहले पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरा जो सवाल है ध्यान से सुनो। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटी विच इज इकोनॉमिक इन वन सेंस एंड नॉन इकोनॉमिक इन अदर सेंस। कोई एक ऐसा एक्टिविटी का एग्जाम्पल दे करके मुझे समझाओ कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है और वही एक्टिविटी कब वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कन्वर्ट हो सकता है, वैसे मुझे कोई एग्जाम्पल बताओ। इफ इट इज एग्जाम्पल देन ऑब्वियसली इट विल नॉट बी इन वन वर्ड। Ma'am, example of economic activity is cricket A academy, teacher. and non-economic activity on other side is coaching his own son for cricket. कौन बोल रहा है? करिश्मा? Yes, ma'am. करिश्मा is a teacher teaching in a school. Is an example of economic activity, but the same teacher teaches her children at her that is home, then it is called non-economic. non-economic activity। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ये economic activity का एग्जाम्पल है। फिर शाम होगी, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, हाँ। लेकिन जैसे शाम को मैं बच्चे से फी मांगूंगी कि भाई जल्दी से पैसे दो मुझे, तो जब मेरा बच्चा मुझे पैसा दे देगा तो मेरी कमाई हो जाएगी, तो तो बहुत शर्म की बात होगी। लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैम हाँ, इसमें क्योंकि मेरे एग्रीकल्चर भी हो टीचिंग सकता है ना प्रोफेशन। हाँ मैम, एग्रीकल्चर भी हो सकता है ना? हाँ, जैसे हो सकता इंडस्ट्री है में एग्रीकल्चर में, अगर हाँ हो सकता है एग्रीकल्चर में तुम अगर ग्रो करके व्हीट राइस को तुम मार्केट में सेल करते हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट इफ यू आर नॉट सेलिंग इन द मार्केट, यू आर कीपिंग विथ योर ओन फैमिली, देन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट बताना तो जरा। चलो ठीक है। उज्जवल प्रोड्यूसेस गुड्स not for the purpose of sale but for the personal or the self consumption. Will it be a business? If yes, No, ma'am. why? No, If ma'am. no, why? No, ma'am. No, No. because he's not going to sell the produce to the market, and he's not going to earn And any business profit. involves There is no sale of activity of goods. business, ma'am. हाँ, यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए। तुम लोगों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में मैंने रिवीजन भी किया था कि बिजनेस का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कुछ उसका फीचर होता है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए, रेगुलर सेलिंग करना चाहिए, है ना, उसमें रिस्क होता है, फिर वो लगातार होना चाहिए, ये सारा फीचर्स है, उसी का ये आंसर है। चलो, नेम द, पहले बताओ तो मैं कुछ अभी बोल रही हूँ, ट्रू और फॉल्स बताना। ट्रू और फॉल्स, इट मे बी फ्रॉम एनी चैप्टर, फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 1, इट कैन बी फ्रॉम एनी चैप्टर। ठीक है, किसका है बाद में पता चलेगा। स्टेट विथ रीजन whether the following statements are true or false. Conversion of cotton into cloth. Conversion of cotton into cloth is an example of genetic industry. True. Conversion Ma'am, true. of True, ma'am. listen carefully. Conversion of cotton. First chapter निकालो. First chapter तुम लोग. मैम फॉल्स है मैम फॉल्स है हाँ, फॉल्स है। तुम लोग पहले Yes, फर्स्ट ma'am. चैप्टर निकालो। देखो, कन्वर्शन ऑफ कॉटन, रीडिंग आता है तो कहाँ से हो जाए। हाँ, कन्वर्शन ऑफ कॉटन इनटू क्लोथ इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। जी नहीं, जेनेटिक इंडस्ट्री में एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्म था, नर्सरी था, जिसमें एक के बाद एक रिप्रोडक्शन से एक के बाद एक न्यू वंस आते हैं। नर्सरी हो सकता है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री हो सकता है, पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री इसमें हो सकता है, लेकिन इसमें कन्वर्शन ऑफ कॉटन इनटू क्लॉथ क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग में ये आएगा। कन्वर्शन ऑफ कॉटन इनटू क्लॉथ जो कि टेक्सटाइल मिल में होता है। हाँ, और ये सेकेंडरी सेक्टर का ये एग्जांपल है।
ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का ये एग्जांपल है, मैन्युफैक्चरिंग, ये फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, तुम लोग पेज टर्न करो, एनसीईआरटी बुक में देखो, तुम्हें वो कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, जहां तक मुझे ध्यान है ये फर्स्ट चैप्टर का ही है। देखो, जेनेटिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पेज नंबर 15। इन पेज नंबर 15 यू विल गेट जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में ब्रीडिंग फार्म्स है, पोल्ट्री फार्म्स है, एक्टिविटी फिश हैचरी है। ठीक है, ये सारा जेनेटिक में आता है। कन्वर्शन ऑफ कॉटन इनटू क्लॉथ इज एन एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अभी और a business activity may be carried out without any sale or exchange. Do you think it is true? false False. हाँ, ठीक है, फॉल्स। एक दूसरे का सुन के एकदम नहीं बोलोगे। मैं फिर से क्वेश्चन बोल रही हूँ, क्योंकि तुम लोग, जिन लोगों ने देर से बोला वो क्वेश्चन सुने नहीं, वो जो पहले फॉल्स बोल दी उनका सुन के बोल रहे हैं। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। A business activity may be carried out without any sale or exchange. नहीं भाई, पॉसिबल तो नहीं है। बिना एक्सचेंज के, बिना सेल के बिजनेस होगा कैसे? ठीक है, तो ये फॉल्स है। False. अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट, तुम इसको आइडेंटिफाई करो, तुम लोग इसको पहचानो। प्राची वर्क्स एज अ सेल्स executive in a mobile company. Prachi works as a sales executive in a mobile company. It is business, profession or employment. मैम क्या है ये? employment Employment, ma'am. हाँ, employment है। गुड, Because चलो Prachi ठीक। gets wages. हाँ, और प्राची को वेजेस मिलेगा। अच्छा चलो, न्यूज़पेपर हॉकर sells newspaper in different part of Patna. A hawker sells newspaper in different parts of Patna. क्या उसका बिजनेस है, क्या उसका प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, क्या है? Business है. business Why it is not an employment? Because निशी, क्योंकि बोलो। वो सेल कर रहा है। He did not get the salary or Ma'am, wages. sell वो कर रहा है और sell- Because he regular sell the regular newspaper and बिजनेसमैन तो वो, profit. हाँ हाँ ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट में तो है नहीं। वो क्या, वो एम्प्लॉयमेंट में होता तो उसको सैलरी मिलता, उसको सैलरी थोड़ी मिलता है। पेपर जितने लोग को वो बेच सकता है, इट गेट्स मनी। हाँ, पेपर जितने लोग को बेच सकता है उसको उतना पैसा मिलता है, सैलरी उसे नहीं मिलता है। सैलरी मिल रहा होता तो वो 10 पेपर बेचे या 100 पेपर बेचे, उसे सेम अमाउंट ऑफ मनी मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, वो उसका प्रोफेशन तो नहीं है कि फी मिलेगा उसे, जो हम लोग डॉक्टर को पे करते हैं। नेक्स्ट, चलो, अच्छा, अब है वन केस स्टडी। बहुत ध्यान से सुनो, वन केस स्टडी, इट इज फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। Rajiv wants to start, actually Rajiv is a name of our technical staff. ठीक है, Rajiv wants to start a wholesale business of ready-made garments, but he is hesitating as it involves various problems such as searching for customers, for moving goods from place of production to market. इन सबके बारे में सेपरेट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। राजीव को मन है होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने का, रेडीमेड गारमेंट का, ठीक है, लेकिन उसे काम करने में प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि उसे कस्टमर को खोजना पड़ेगा, ठीक है, गुड्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, कस्टमर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा नए डिजाइन के बारे में, और हर सीजन में वैरायटी वो लाने वाला है, इस चीज के बारे में भी उसे इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, ठीक है। थ्रेट ऑफ रिस्क, थ्रेट ऑफ रिस्क, लॉस बाय फायर और एक्सीडेंट, स्टोरिंग द एक्सेस स्टॉक ऑफ गुड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे प्रॉब्लम राजीव जी के हैं, ठीक है। He approached his friend Sunil, who explained him about some branches of commerce. राजीव जी जो हैं
वो अपने फ्रेंड से बात करते हैं, तो राजीव जी के जो हमारे जो टेक्निकल स्टाफ हैं, वो जब उनको बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है तो वो अपने फ्रेंड सुनील से बात करते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब वो तो जो सुनील है बहुत स्मार्ट है, वो राजीव जी को बताता है कि तुम चिंता क्यों करते हो, यहाँ बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स हैं जो कि तुम्हें हेल्प करेंगे तुम्हें बिजनेस करने में। ठीक है, अब इस पूरे शॉर्ट स्टोरी से तुम्हें आंसर करना है 3 सवाल का। पहला क्वेश्चन, स्टेट द टाइप ऑफ बिजनेस राजीव जी इज प्लानिंग टू स्टार्ट। Sole proprietorship. Sole. It is not, sole proprietorship, it is true, but children I am asking this question actually from the first chapter। चलो ठीक है, अगर तुम्हारा, देखो सुनो, अगर एग्जाम होगा तुम सोल प्रोप्राइटरशिप लिखते हो और ये 1 नंबर का होगा तो मैं तुम्हें 1 नंबर दूंगी, 1 नंबर में तुम्हें 1 नंबर मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन एक्चुअली जब मैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर को जब मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर का आ गया जहाँ पे होलसेल ट्रेड है, देखे होगे तुम लोग, उसमें रिटेल ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, एंट्रीपोर्ट ट्रेड है। ठीक है, तो अब बताओ राजीव जी कौन से टाइप का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं? हिंट मैं दे रही हूँ, होलसेल रेडीमेड गारमेंट। मैम होलसेल। होलसेल, नॉट रिटेल। शिवम, नॉट रिटेल बेटा इसलिए ना क्योंकि मैंने नाम ले लिया है ना, राजीव जी wants to start a wholesale, राजीव जी wants to start a wholesale business of ready-made garments। Answer is given in the question itself। आंसर खुद दिया हुआ है कि कौन सा टाइप का ट्रेड है, तो तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ टाइप ऑफ ट्रेड, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, एंट्रीपोर्ट ट्रेड। तो इसका आंसर क्या होगा? होलसेल ट्रेड, ये इसका आंसर। चलो नेक्स्ट, अब बताओ तो, which dimension of business can help Rajiv ji to overcome these problems? Auxiliaries to trade can. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। उत्कर्ष समझ गया, बाकी बच्चे तुम लोग ध्यान से सुनो। मेरा सवाल ये है कि राजीव जी के मन में ऐसा बहुत सा सवाल चल रहा है कि भाई कस्टमर को मैं कैसे इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, राजीव जी को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं गुड्स को कैसे ट्रांसफर करूंगा, उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं रिस्क जो आएगा मैं उसको कैसे कवर करूंगा, इतना सारा प्रॉब्लम है। तो उसको क्या सॉल्व करेगा? कॉमर्स सॉल्व करेगा। क्यों? कॉमर्स का एग्जाम्पल क्या क्या था? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, उसका एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट, एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्टेशन, एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज। याद है कि नहीं? याद है? Yes, ma'am. Yeah. सुनो, जिन लोगों को याद नहीं है, पेज नंबर 18-19 में देखो तो पेज नंबर 18-19 में दिया हुआ है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रेड को हेल्प करने वाले फैक्टर्स, असिस्टेंट, हेल्पर टू ट्रेड। तो ट्रेड करने में क्या क्या हेल्प करता है? बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग। ठीक है, तो उनको अपने बिजनेस को करने में ये सारे हेल्प करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम नाम ले रहे हैं, तुम लोग बताना तो कि वो कौन सा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। मैं नाम ले रही हूँ, तुम लोग बताना कि वो किसका एग्जाम्पल है। ध्यान से सुनो, केस स्टडी इसी तरह से आएगा। ठीक है, कम से कम तुम्हारा ये 15 से 20 नंबर का केस स्टडी हो सकता है बच्चों। ठीक है, 80 मार्क्स का जब एग्जाम होता था तो उसमें 23 से 25 नंबर का केस स्टडी होता था। ध्यान से पहले सुन लो,
जब 80 मार्क्स का जब स्कूल में एग्जाम होता था, नॉर्मल सिचुएशन में, हाफ ईयरली की मैं बात कर रही हूँ, तो 80 मार्क्स में करीब 23 से 25 नंबर का केस स्टडी हुआ करता था। ठीक है, तो 80 में करीब 23 से 25, तो वैसे 40 में तुम्हारा बहुत अच्छा खासा मार्क्स होगा केस स्टडीज के लिए। ठीक है, तो चलो अब इसमें हम नाम ले रहे हैं, तुम लोग बताना कि वो किसका एग्जाम्पल है। राजीव जी को प्रॉब्लम हो रहा है मूविंग गुड्स के लिए, मूविंग गुड्स के लिए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, थ्रेट ऑफ रिस्क, थ्रेट ऑफ रिस्क, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, ठीक है। हाँ देखो, 2 स्टूडेंट अभी क्लास से निकले हैं, एक सचिन, हाँ अभी एक और निकल गया, सचिन का तो मैंने नाम देख लिया, सचिन निकला है, और पता नहीं 2 बच्चे भी और निकले हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन 3 बच्चों ने क्लास अभी छोड़ा है। बस मुझे नाम देखने की देरी होती है कि या तो क्लास में आओ ही मत, या तो क्लास में आओ ही मत, अगर आ गए हो तो रहो, क्योंकि जब बच्चे जाते हैं तो वहां दिखता है, ठीक है, कि बच्चे चले गए, तो मेरा ध्यान चला गया उस पे। सचिन लेफ्ट कर दिया, मतलब जरूरत नहीं है क्लास की, चलो अच्छी बात है। अच्छा चलो, फिर इसके बाद है इन्फॉर्मिंग कस्टमर्स, एडवर्टाइजिंग, शाश्वत हैज लेफ्ट द क्लास, शाश्वत, मैं नाम याद रख रही हूँ, सचिन, शाश्वत, 2 बच्चे टाइम दे करके चले गए, मेरे बाय किए बिना, उसके पहले ही। क्या बोला तुम लोगों ने इन्फॉर्मिंग कस्टमर्स का? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, चलो हाँ, तो ठीक है बच्चा, गुड। अच्छा अब एक बात बताओ तो डू यू, अच्छा बस एक लास्ट क्वेश्चन है, अंजलि रनिंग अ बेकरी, अंजलि ऑफ क्लास 11D रनिंग अ बेकरी, ठीक है, रनिंग अ बेकरी, एंड अतुफा ऑफ क्लास 11D कुकिंग फूड एट होम। बताओ डिफरेंस क्या है, इन दोनों वर्क में क्या डिफरेंस है? अतुफा का नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, नॉन इकोनॉमिक और एक्टिविटीज। अंजलि अतुफा का का नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक का इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक का और एक में नॉन नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी। अच्छा चलो ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग एंड माइनिंग, डिफरेंस? दोनों प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। डिफरेंस बताओ, पोल्ट्री फार्म इसमें पोल्ट्री फार्मिंग इज जेनेटिक इंडस्ट्री, वेयर इज माइनिंग इज और मैम पोल्ट्री फार्मिंग इज जेनेटिक एंड माइनिंग इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इंडस्ट्री। देखो सिमिलैरिटी आता ना सृजा, जब सिमिलैरिटी पूछा जाता है कि व्हाट इज द सिमिलैरिटी, तो लिखना कि बोथ आर अ पार्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री, बोथ आर अ पार्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस अगर वर्ड आ गया तो इवन इफ बोथ आर द पार्ट ऑफ प्राइमरी industry, but one is belonging to the genetic and another is belonging to the extractive industry. ठीक है बच्चों? यस मैम। अच्छा बच्चों, बहुत जल्दी रिवीजन वाला क्लास भी खत्म हो जाएगा, हमको लगता है कि 16 से तुम्हारा एग्जाम है, तो है ना, तो ठीक है, तो इसीलिए जल्दी से बस हम ये एक तरह से हम लोग का एंड ही है क्लास का, और अच्छे से एग्जाम देना। रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं बताते जाऊंगी, शायद जब स्कूल खुलेगा तो हम लोग तो स्कूल जाएंगे, तो वहां शायद तुम लोग को आकर के जमा करना होगा, देखा जाए, जो भी होगा तुम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। मार्कशीट जब आ जाएगा, हाँ बोलो मैम। क्लास लीव होने मैम ऑनलाइन एग्जाम देने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं देखो, सारे बच्चों का सारा आंसर कलेक्ट करने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इसीलिए जो हम लोगों ने टेस्ट लिया जानबूझ करके लिया था, ताकि क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं बच्चे और वो हाफ ईयरली में नहीं हो, शायद हाफ ईयरली एग्जाम तक तुम लोग का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है, ये कोशिश किया जा रहा है, सारा प्रोसेस में है। चैप्टर 7-8 का रिविजन, हाँ कल 7-8 का रिविजन करवा देंगे करिश्मा, कल 7-8 का रिविजन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए सारा इन्फॉर्मेशन तुम लोग को पहले मिल जाएगा, चिंता मत करो, स्कूल के टच में रहो, मार्कशीट जब आ जाएगा तो तुम लोग उसको डिपॉजिट सबमिट कर देना, ठीक है, ओके ओके, बाय बाय, ओके मैम, थैंक यू मैम, बाय बाय मैम।